নমস্কাৰ দৰ্শক, চাই আছে আপোনালোকে দ্য নিউজ প্লাছ আৰু দ্য নিউজ প্লাছৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান পৰিক্ৰমাৰ মজিয়ালৈ মনোবিশেষ সৈতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু বিশেষ প্ৰথমতে একো নকওঁ, আমাৰ প্ৰমো চাই আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ কোন আহিছে, আমি কিয় আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ আৰু তেখেতৰ সৈতে তেখেতক চিনাকি কৰি দিবলৈ যিহেতুকে আমাৰ বাবে এগৰাকী নতুন আলহী, কিন্তু অসমলৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেখেত আহিছে। তেখেত আন কোনো নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব, ভাৰতৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আপোনালোকে যেনেকৈ পৰিচয় নিদিয়ে লাগে কিয়, আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ এজন ইউটিউবাৰ আৰু তেখেত হৈছে MSK। মই দেখুৱাম তেওঁ, কিন্তু প্ৰথমেই মই আমাৰ এটা ঘৰুৱা ল'ৰা ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। টানি আনিছোঁ বিকাশ। কি খবৰ? বহুত দিনৰ পিছত দেখা পালোঁ ন? আৰু বিকাশৰ এটা বস্তুৱে ভাল লাগে দৰ্শক, যে প্ৰত্যেকবাৰে যেতিয়াই বিকাশ আমাৰ দ্য নিউজ প্লাছৰ কাৰ্যালয়লৈ আহে, বিকাশে এগৰাকী নতুন অতিথি লগত লৈ আহে। এইবাৰ বিকাশৰ লগত কোন আহিছে আৰু আমি কেনেকৈ চিনাকি কৰাম? টু এক্সাইটেড। ধন্যবাদ, বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ দ্য নিউজ প্লাছৰ আৰু লগতে অনামিকাকো বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে আজি যিহেতু ক'লে আপোনালোকে ইণ্ট্ৰডিউচ দিলে MSK, মোৰ তৰফৰ পৰা মই দুখাত তেখেতৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিম। যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, মই 2017 লাষ্ট বা 18 ফাৰ্ষ্টত মই যেতিয়া ইউটিউব জাৰ্নিটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মই বুলি নহয়, যিসকল আমাৰ এতিয়া মানে ব্লগাৰ আছে ইণ্ডিয়াৰ লেভেলতে হওক বা আমাৰ অসমতে হওক বা নৰ্থ ইষ্টতে হওক, মানে আমি শিকিছোঁ যাৰ পৰা বস্তু এটা আমি পাবৰ কাৰণে আমি শিকিবতো লাগিব। কিবা এটা বস্তু যেতিয়া আমি কৰোঁ, এক্টিং কৰিব গ'লে এক্টিং শিকিব লাগিব, গান গাব হ'লে আমি গান শিকিব লাগিব, চব বস্তুৰে এটা মানে শিকা এটা সেই থাকে। কিন্তু আমি যেতিয়া ইউটিউব কৰোঁ, ব্লগ কৰোঁ, আমাৰ কোনো ধৰণৰ ইনষ্টিটিউট নাথাকে, আমাৰ কোনো ধৰণৰ কলেজ নাই, তে আমি কাৰ পৰা শিকিম? তে আমি এওঁলোকৰ পৰাই শিকিছোঁ, যিজন আজি আছে মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন বুলি ক'ব লাগিব। তেওঁক শিকিয়ে মই ধৰক ৰাইড কৰা বা ইউটিউবৰ যিটো জাৰ্নি, যেনেকৈ মই মই ইউটিউব চেনেল খুলিছিলোঁ, কিন্তু সেই জাৰ্নিটো মই কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাম, মই কেনেকৈ মোৰ স্কিলটো ভাল কৰিম, কেনেকৈ মোৰ কণ্টেণ্ট মই ভাল কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰাই মই শিকিছোঁ। মই বুলি নহয়, অসমৰ লগতে ভাৰতত যিমানখিনি এতিয়া উঠি অহা ইউটিউবাৰ আছে, যোনে বহুত আগুৱাই গৈছে, ভাল ভাল ভিউজ পাই আছে, বহুত চেনেলো গ্ৰ' হৈছে, তে আমি প্ৰথমখিনি মানে তেখেতসকলৰ মানে ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি আৰু, যে তেওঁলোকৰ পৰা আমি শিকি আমি আজি ইয়াতে আছোঁ। মানে নিশ্চয় আমি চিনাকি কৰি দিওঁ নেকি এতিয়া? MSK আছে, তেওঁলোক অসমত ইয়াৰ আগতো আহিছে, 2018 চনতো আহি কিনে অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ল'ৰ কৰি গৈছে আৰু এইবাৰ আহিছে। আৰু যেতিয়া তেওঁ ইয়াতে আহিব বুলি গম পালে, মই কণ্টেক্ট কৰিলোঁ আৰু মই যে তেওঁক অসমখন দেখাব পাৰিছোঁ। তেওঁ বহুতখিনি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিছে, যেনেকৈ চাহপাত হওক, পাট মুগা হওক, অসমৰ যিবোৰ থলুৱা বস্তু বা অসম যিহৰ বাবে বিখ্যাত, নেশ্যনেলি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু মই লাকি বুলি ভাবোঁ যে মই তেওঁৰ লগত ঘূৰি অকণমান মই তেওঁক সহায় কৰিবলৈ মানে পাৰিছোঁ, যে এইখিনি মোৰ কাৰণে বহুত মই লাকি বুলি ভাবোঁ। Okay, so guys, introducing you to the one and only MSK. Welcome to Assam, welcome to the News Plus. कैसे हो आप और कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? और this is your second time in Assam and कुछ भी बोलिए, पहले तो हम सुनना चाहते हैं आपके मुंह से दो शब्द। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ मोहम्मद सलीम खान और मैं मुंबई में रहता हूँ। मैंने लगभग 2016 के एंडिंग में ऐसे नॉर्मली शुरू किया था, सीरियस नहीं था, बस शुरू किया था कि जो चीज़ अच्छा लगता है वो करते हैं। Definitely. और फिर धीरे धीरे कारवां बढ़ते गए और अभी जाके इतना बड़ा परिवार बन चुका है यूट्यूब पे। बहुत बड़ा परिवार। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मुझे कल कॉल आया विकास का कि हम लोग आपका इंटरव्यू लेने वाले हैं, तो बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे आए हैं कि इज MSK कमिंग टू योर ऑफिस, इज कमिंग लाइक ही इज कमिंग टू द न्यूज़ प्लस। तो आई वाज रियली एक्साइटेड। और असम में आज ये आपका सेकंड टाइम है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज असम की क्या लगती है विकास के अलावा? यहाँ पर जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ ना, लोग बहुत प्यार करते हैं, इंक्लूडिंग मी। बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों में। और जहाँ पर भी जाते हैं वो गमूछा देते हैं, वो ट्रेडिशन मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारे गमूछा जमा कर लिए। बढ़िया। हम लोग ने जितने लगेज लाए तो उससे ज़्यादा हमारे पास गमूछा हुआ है। अब यार एयरपोर्ट में अगर एक्स्ट्रा पैसा मांगे तो ये हमारी कोई गलती नहीं है कि नहीं? एग्जैक्टली। और हमको पता चला है कि आप 10-12 डेज का टूर से आए थे। और ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या एक्सप्लोर किया असम में? और जब भी असम में कोई नया व्लॉगर्स, हमारे लिए नया जो ब्लॉगर्स आते हैं, विकास के थ्रू हम उनसे मिलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो उनको हम एक बात पूछते हैं असम की खासियत, और उसके बाद असम का बेस्ट डिश क्या होता है। तो आपको क्या अच्छा लगा असम में सबसे ज़्यादा?
वो डिश का नाम नहीं पता था। কৈ দিয়া অ কি ডিশ তেওঁ এতিয়া কৈ দিব नाम हम लोग और डिश का मतलब नाम नहीं था, हम लोग ने नाम रख के आया। অৰ্কিড ৰিজৰ্টত লৈ গৈছিলো মানে কাজিৰঙাত যে আছে এখন সিহঁতৰ বহুত ডাঙৰ থালি আছে য'ত আমাৰ অসমীয়া Full চব plate? हाँ फुल प्लेट, वहाँ पर 26 आइटम्स थे वाओ और अलग अलग। ये तो पूरा खाली होगा इसने आप खा पाए ना ना ना, किसी में हिम्मत नहीं थी वो खाली करने की। ইমান ডাঙৰ থালি हाँ তে আমি ও থালিকে हम लोग নাম দিয়ে কে ব্ৰহ্মপুত্ৰ থালি আমি নাম দিয়ে আহিছো। বাই গড আৰু এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ একেবাৰে পাৰতে আছো। কিনাৰতে আছো হয় तो डिश आपको वो अच्छा लगा हाँ, मतलब वो मेरे को काफी यूनिक लगा क्योंकि उसके हर निवाले में अलग स्वाद था। तो खाने में तो ऐसे लग रहा था कि हर बार कुछ ना कुछ नया आ रहा है और मतलब पेट भर रहा है लेकिन जी नहीं भर रहा है, वैसा हो गया। अरे 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 तो जो भी यूट्यूबर्स असम में आते हैं एक्सप्लोर करते हैं राइड्स करते हैं और दिस इज़ नॉट ओनली विकास और समीरन और कोई भी हो लेकिन हम बिलीव करते हैं कि असम में जितने भी व्लॉगर्स हैं उन्होंने आपसे व्लॉग्स बनाना सीखा है और बहुत सारे सोर्सेस से हमें भी पता चला है कि जैसे MSK व्लॉग्स बनाते हैं जिस तरीके से बनाते हैं हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं तो देखा जाता है कि आपको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और आमी कथा पातिम किन्तु आमी विकासक बिदाय দিব লাগিব কাৰণ विकासर এটা ইম্পৰ্টেন্ট কাম আছে আজি আৰু আমি হেকাৰণে विकासक ধৰি নাৰাখো विकास আমি এতিয়া একদম কথা পাতিম हम उनको अभी विदा करते हैं बाय बाय আকৌ লগ পাম বাই বাই यस প্ৰিয় দৰ্শক আমি विकासक বিদায় দিলো কাৰণ তেখেতৰ অকমান জৰুৰী কাম আছিল তেখেত ওলাই গল কিন্তু কোনো কথা নাই আমি কথা পাতিম আমাৰ MSK লগত जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि असम के बहुत ब्लॉगर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं आपसे सीखा है उन्होंने तो लाइक यू नो व्हाट डू यू फील इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज अ ब्लॉगर पहले तो नहीं सोचा था कि कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो मैं हूँ वही मैं कैमरे के सामने रहता था। बट कभी कभार ऐसा मैंने देखा है, जैसे मैं बाइक चलाता हूँ तो मुझे देख के लोग इंस्पायर होते हैं, वो भी बाइक चलाते हैं और फिर वो जब बाइक से गिर जाते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने उनको क्या इंस्पायर किया था कि बाइक चलाने के लिए। तो ऐसा होता है। तो अभी अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो पहले मैं सोचता हूँ कि इसका आगे चल के क्या परिणाम होगा। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अभी क्योंकि बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं। तो इवन मतलब लोग ऐसा भी करते हैं कि अगर मैंने कोई लॉकेट पहना हुआ है या फिर कोई अंगूठी पहना हुआ है वो भी पहनते हैं, वो लोग पहनते हैं। टी शर्ट, हेयर स्टाइल, रहने का तरीका, शूज और सब एकदम वो नो इंस्पायर होकर वो चीज़ करते हैं, फॉलो करते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनी जाती है कि आप सही सही सब कुछ करो। तो मैं हमेशा अपने चैनल में कुछ अच्छा ही मैसेज देता हूँ ताकि यू नो इंस्पायर हो, वो ग्रो करे अपने लाइफ में, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो। और लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, लाइक यू और इन असम यहाँ के रिस्पॉन्स भी अलग होंगे। अगर आप उड़ीसा में हो या कहीं और हो तब भी रिस्पॉन्स अलग होंगे। तो लोगों से कितना और कैसे प्यार मिलता जा रहा है? जब आप मुंबई से बाहर निकलते हो तो लोगों का रिएक्शन टुवर्ड्स यू कैसा होता है? मैं मतलब हर स्टेट में अलग लेवल का प्यार है। राइट जैसे हमारा बेस्ट है लेकिन हाँ आसाम का बेस्ट है, सच में बेस्ट है क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है। मेरे को बहुत पसंद आता है जब कोई जहाँ पर भी जाते हैं मिलते हैं। वैसे तो महाराष्ट्र में भी कहीं भी जाऊँ लोग मिलते रहते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सट्रीम है। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा स्ट्रीम कर लेते हैं कि गाड़ी के बीच में आ जाते हैं कि रुको हमें मिलना ही है। तो यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन हर स्टेट में प्यार मिलता है जहाँ पर भी जाते हैं। और कभी कभार ऐसे लगता है कि अरे अभी बस हो गया, अभी क्या वीडियो बनाते हैं। लेकिन फिर कोई मिलता है और वो सामने से जब कहता है अपनी कहानी कि मैंने आपको देख के ये किया है, ये सीखा है, तो फिर मन करता है कि चलो और वीडियो बनाते हैं। राइट तो कभी ऐसा होता है ना कि समथिंग एक्चुअली स्ट्राइक्स इन योर माइंड एंड देन यू स्टार्ट डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो व्लॉग्स बनाने से पहले आपके सपने क्या थे, या पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद या पढ़ाई के टाइम में आपको ख्याल आया कि मेरे को ब्लॉग्स बनाने हैं? तो व्हाट इंस्पायर्ड यू और व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्ड यू टू मेक दीज काइंड्स ऑफ वीडियोस? और पहले आप कैसे वीडियोस बनाते थे? एकदम पहला वाला आपका लाइफ का पहला व्लॉग याद है? हाँ बिल्कुल। सो जर्नी में मतलब जब मैं छोटा था तो हमारी फैमिली थोड़ी पुअर कंडीशन में थी, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। उस टाइम मुझे क्रिकेटर बनना था। तो एक्चुअली मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, खेल कूद में भी बहुत अच्छा था और झगड़ा वगड़ा भी बहुत अच्छे से करता था। तो सब में अच्छे थे पढ़ाई, लड़ाई, झगड़ा कुछ भी हो, मतलब सब में अव्वल। एंड फिर जब क्रिकेट खेलता था, मैं क्रिकेट में भी बहुत अच्छा खेला, लेकिन बैक इंजरी की वजह से मैं क्रिकेट को आगे परसीव कर नहीं पाया। और फिर उसके बाद कुछ था नहीं करने को, तो मैंने सोचा कि जो घर की पहले फाइनेंशियल कंडीशन है उसको सॉल्व करते हैं।
तो फिर मैंने काम करना शुरू किया और जब मैं 21 साल का हो गया था तभी मैंने मुंबई में घर भी ले लिया, बाइक वाइक जो भी चाहिए था सब मैंने ख़त्म कर दिया फाइनेंशियल कंडीशन। that's interesting actually. तो- At the age of 21 years. हाँ, मैंने 15 साल में काम करना शुरू किया था। क्या करते थे आप 15 साल में? Like, मैंने how शुरू did you किया था start लेडीज़ working? टेलर से Okay. और धीरे धीरे करते फिर वेटर का, फिर अलग मैं तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि पैन कार्ड बनवा रहा था लोगों के। लाइक ये सब एक्चुअली जानना चाहिए क्योंकि अभी ऐसा कंडीशन में हो रहा है कि इफ़ यू वांट टू बी अ ब्लॉगर यू हैव टू हैव अ गुड क्वालिटी कैमरा, यू हैव टू हैव अ गुड मोबाइल फोन, यू हैव टू हैव अ गुड माइक, सब चाहिए होता है तभी जाके वो बोलते हैं कि आई एम अ ब्लॉगर और आई एम एन लाइक अ यूट्यूबर, बट यू हैव ग्रोन अप लाइक डेवलपिंग योरसेल्फ। ये जो है ना मतलब अभी फिलहाल, पहले लोग ऐसा मानते थे कि व्लॉग्स बनाने के लिए अच्छा कैमरा माइक चाहिए, हाँ। बट अभी नहीं। अभी आप देखोगे काफी सारे लोग मोबाइल से Right, व्लॉग करते right, हैं। अभी आपने देखा होगा विकास को सीधा मोबाइल लाके आपको मोबाइल मुंह पे- लगे, राइट राइट तो राइट। अभी उसकी जरूरत नहीं है। अभी लोग मतलब अभी मोबाइल की क्वालिटी इतनी अच्छी आती कि जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन उस टाइम पे था। उस टाइम पे मतलब उतने अच्छे मोबाइल होते नहीं थे तो हम लोग उससे करते थे व्लॉग, मतलब कैमरा वैमरा से, बट वो कंडीशन ऐसा है कि जरूरी नहीं है। राइट। तो लाइफ का वो पार्ट था कि यू नो सब कुछ कंप्लीट करना था। एंड देन फिर मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट किया, ऐसा ही नहीं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। सो आई एम अ ग्रेजुएट, तो बीकॉम मैंने किया था। एंड देन उसके बाद में जो फाइनेंशियल कंडीशन सॉल्व करनी थी घर की वो हो गई। अब क्या करना है लाइफ में, अब तो कुछ बचा नहीं। राइट राइट। ठीक है, तो क्रिकेट भी खेल नहीं सकते अभी वापस। तो क्रिकेट के बाद अगर कोई प्रोफेशन मेरे करीब था वो था बॉलीवुड। Okay. मैं मूवीज बहुत देखता था, तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि एक्टर बनना चाहिए, अरे। मैं हीरो बनूंगा। राइट। उसके और बाद फिर मैंने एक्टिंग स्कूल किया, थिएटर ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने एक्टिंग सीखा। फिर मैं ऑडिशन देने के लिए गया, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे काम मिले, अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हूँ, एड्स में भी आया हूँ मैं काफ़ी। एंड देन फिर मेरे को लगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि अच्छा उसमें भी आपको मजा नहीं आया? नहीं मज़ा आ रहा था, बिकॉज जैसा काम चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा है। राइट। तो जब तुमको अपने काम में खुशी नहीं मिल रहा था फिर तो कुछ गड़बड़ हो रहा था। फिर मैंने ना अपने दोस्तों को इकट्ठा किया कि जिस स्कूल में मैं था वहाँ पर सारे फिल्म मेकर स्टूडेंट थे, तो उनको जमा किया, एडिटर को लाया अपने साथ में, फिल्म मेकर को, स्क्रिप्ट राइटर को, सब मिला के मैंने एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई। और फिर हमने फिल्में बनाना शुरू किया, शॉर्ट फिल्म्स। ओके। और वो शॉर्ट फिल्म्स, पहला शॉर्ट फिल्म्स को नासिक फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला। वाओ, बेस्ट दैट्स स्टूडेंट, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। बेस्ट स्टूडेंट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला था और हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। राइट राइट। और उससे फिर क्या हुआ कि बाकी जो लोग थे उनको काम मिल गया, एडिटर Okay. को एक काम मिल गया, क्योंकि अगर तुमने एक कोई अच्छा मूवी काम किया बनाई तो है right, right. तो तुम्हारा पोर्टफोलियो में एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि नो तुमको अभी काम लोग दे देंगे, अच्छा तुमने ये काम किया चलो आ जाओ काम करो। तो सारे लोग अलग हो गए, लेकिन जो एक्टर थे वो बच गए उनको कहीं काम नहीं मिला। से बच गए। ओके, देन एंड देन फिर क्या हुआ कि सारे गियर्स तो थे, मतलब मेरे को फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट तो था। फिर एक साल के लिए वो सारे गियर्स मैंने रख दिए और फिर उसके बाद में मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस लाइफ में यहाँ वहाँ भटक रहा था। एंड देन फिर मेरे को यूट्यूब के बारे में पता चला कि व्लॉगिंग करके कोई चीज़ होती है। ओके एंड देन सडनली स्ट्राइक हुआ कि अरे ये तो चीज़ मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको व्लॉगिंग कहते वो पता नहीं था। Okay. एंड देन जितने भी कैमरा मैंने अंदर कबर्ड के अंदर रख दिए थे उसको सारा बाहर निकाला, चलो वीडियो बनाते हैं। ओके और ऐसे करके फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मैं 2013 में लद्दाख गया था फर्स्ट टाइम, ओके और उस टाइम पे भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, लेकिन अपलोड कभी नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता था कि अपलोड करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे यार। हमें बोलने नहीं right, आता था, right. हम लोग ऐसे हिचकिचाते हैं, शक्ल ठीक है कि नहीं, मतलब बाल ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा। Right. तो ये सब क्वेश्चंस बहुत होते थे। फिर हम लोगों ने ना, मैंने मतलब ये किया कि वो वीडियो अपलोड ही नहीं किए थे। ओके। फिर अभी एक भी दिन- है आपके पास वो वीडियो? हाँ वो सारे हैं। बढ़िया है। तो मैं फिर एक दिन हिम्मत किया, मैंने सोचा कि अब चाहे दुनिया कुछ भी बोले मैं अपलोड करूंगा, लोग जज कर रहे हैं करने दो, लोगों का काम है, वो लोग कहेंगे, Definitely, मैं अपना definitely. करते जाऊंगा। और फिर मैंने वीडियो अपलोड किया, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। फिर और वीडियोस अपलोड किए, लोगों को अच्छा लगा। जब मैंने इनिशियली अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मुझे बहुत कुछ सीखना था, मतलब कैमरे के सामने बोलना। अभी तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, अगर ये 4 साल 5 साल पहले होता ना, मैं यहाँ पर खड़ा नहीं होता, मैं भाग जाता वहाँ से मेरे को मत लाओ कैमरे के सामने। तो ऐसे करके मैंने कैमरे के सामने सीखना चालू किया कि कैसे बात करते हैं, और फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। फिर 2-3 साल बाद फिर मैं यूट्यूब को लेके सीरियस हुआ। ओके अब मैं फुल टाइम यूट्यूब करता हूँ, अभी इसके अलावा कुछ नहीं है। बढ़िया है। और जो ये जो आपकी जर्नी है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे आपने स्टार्ट किया, उसके बाद राइट नाउ वेयर यू आर इन, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि एमएसके को लोग पसंद करते हैं, लेकिन साथ साथ एमएसके को लोग ट्रोल भी करते होंगे। कहीं ना कहीं किसी कोने में एक तो होगा शायद, हाँ। शायद इसीलिए शायद बोल रही हूँ क्योंकि लाइक 100% ऑफ एसएमईज एंड असम के लोग तो आपको प्यार देते हैं, प्यार करते हैं, बट देयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वेयर यू आल्सो लाइक यू नो गॉट
दोस काइंड ऑफ कमेंट्स की क्या कर रहे हो, कैसे कंटेंट बना रहे हो, नहीं होंगे शायद, लेकिन मैं नहीं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। है। हाँ, तो ये सारे सोशल मीडिया ट्रोलिंग्स को आप एज अ यूट्यूबर कैसे हैंडल करते हो? तो पहले जो था ना वो काफ़ी अफेक्ट करता था सारे क्वेश्चंस। Right. जो भी कमेंट करते थे हम लोग बहुत सीरियसली उसको पढ़ते थे। अगर किसी ने तारीफ किया हुआ है ना तो वो बहुत अच्छा लगता था, अरे वाह मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन एक नेगेटिव कमेंट अगर आ जाता था, 100 कमेंट अच्छे और सिर्फ एक कमेंट नेगेटिव, वो इतना अफेक्ट करता था कि यार क्या करना है। Right. तो बहुत एक बार तो वो सब कमेंट्स की वजह से मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ था कि Is अब it? हाँ, कि अब क्या करना चाहिए, लाइक यू नो अब करना चाहिए यूट्यूब या नहीं भी करना चाहिए, Right. बिकॉज यू आर शोइंग योर पर्सनल लाइफ। राइट, ठीक है, आप अपनी मम्मी पापा को दिखाते हैं, आप अपनी बहन भाई Right, बीवी, right. मतलब बीवी तो नहीं लेकिन हाँ, मैं एक होता जनरल है। टॉक बता रहा हूँ। Right. तो लोग कुछ भी कमेंट करते हैं उसके ऊपर, तो कभी कभार कमेंट ऐसे दिल पे लगते हैं। फिर थोड़ा टाइम लगा मुझे ये चीज़ को समझने के लिए कि अगर आप पब्लिक फिगर बन जाते हो तो लोग तो कमेंट करेंगे। तो अभी जो नेगेटिव कमेंट्स है वो इतने अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव कमेंट नहीं आते। आप कितना भी अच्छा काम करो, कितना भी अच्छे बन के रहो, फिर भी लोग आपको परेशान करेंगे, लोग कमेंट करेंगे। मैंने कभी भी किसी को यूट्यूब पे गाली नहीं दिया है, ना कभी किसी से पंगा लिया है, या फिर कभी किसी को कुछ बोला नहीं है, लेकिन अभी भी मुझे लोग हेट करते हैं। और व्हाई? मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे लोग हेट क्यों करते हैं। क्योंकि Exactly. मैं जब भी मिलता हूँ हमेशा हंसता रहता हूँ, खिलखिलाते रहता हूँ। क्यों हेट करते हैं मुझे भी नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूबर है जिसका हेटर्स नहीं है, सारे यूट्यूबर्स के आपको हेटर्स मिलेंगे, लेकिन क्यों पता नहीं। बट हेटर्स आर समवन दैट मेक्स यू मोर स्ट्रॉन्गर, आई फील। उनके कमेंट्स आपको और स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो भी लाइक होते हैं वो और उस पार्ट को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हेटर्स हाँ। होते हैं ना वो कुछ भी कमेंट करते हैं। अगर That's जैसे true, that's true, आपने एक that's मूवी true. बनाई है और आपको एकदम अच्छा कोई क्रिटिक दे रहा है तो आप इम्प्रूव करोगे ना। Right. उनके पास क्रिटिक नहीं होता, बस आपको अच्छा। परेशान करने के लिए करते हैं। तो that's ये भी true. लोग हैं, उनके That's पास कुछ true. काम नहीं होता, That's पता नहीं, तो इसलिए वो करते हैं ऐसा। मे बी हाँ। तो छोड़िए उन सब बातों को, लेकिन वी रियली वांट टू नो दैट इन 10 दिनों में आपने असम में क्या क्या एक्सप्लोर किया। हमको पता चला कि आप चाय के बारे में, जो असम का फेमस असम टी है, उसके बारे में आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया। असम का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है पातमुगा, उसके बारे में आपने काफ़ी हाँ। एक्सप्लोर किया। सो कैसा रहा आपका वो 10 दिन की जर्नी? सो अभी कैसा है कि पहले जो मैं कंटेंट बनाता था और अभी जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक जैसे पहले हम क्या मजाक मस्ती वाले कंटेंट बनाते थे, जो भी जगह पे जाते थे हम इतना रिसर्च नहीं करते थे, हम सिर्फ गूगल पे देखते थे कि 4 जगह यहाँ घूमने लायक है, चलो वहाँ चलते हैं। ओके, आसाम में आए, 4 चीज़ें देख लिए, चलो यहाँ घूमेंगे, वहाँ कहीं पे भी कोई स्टेट में जा रहे हैं 4 जगह देख लिए, वहाँ घूमेंगे। बट मैं अभी जो कंटेंट बना रहा हूँ ना, मैं उस कंटेंट को जीना चाहता हूँ, लाइक आई वांट टू लिव दैट। सो आसाम आने के बाद हमने एक सीरीज़ चालू की है जिसका नाम है अमार अखोम। ओके। सिल्क बनने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। ये जो बटरफ्लाई है, ये आपका मुगा का बटरफ्लाई, ये मूगा बटरफ्लाई है। ये एरी का है। मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है मूगा सिल्क कपूर, मतलब ये चीज़ निकल रही है, इतने सालों तक टिकी भी रहती है। क्या इसका कॉस्ट होता होगा ये साड़ी का? लगभग 45,000 का है। जय अयोखाम। जय और वो सीरीज़ का जो नाम है वो भी हमारे सब्सक्राइबर लोगों ने सजेस्ट किया, उसका लोगो भी है और वो भी सब्सक्राइबर लोगों ने सजेस्ट किया। तो ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ मतलब मेरी तो है, लेकिन हमारे कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं यूट्यूब कम्युनिटी में, Right. वो भी इस पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि वो भी हेल्प करते हैं उस सीरीज़ को और अच्छा बनाने में। तो इस सीरीज़ में ऐसा है कि हम लोग आसाम की ऐसी चीज़ें जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है वो लोगों को दिखाएंगे, वो इंडिया के सारे स्टेट्स को दिखाएंगे। राइट। और जैसे यहाँ पर जो मूगा सिल्क है वो दुनिया में कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। राइट। ये बात मुझे नहीं पता थी, और आई एम श्योर ये बात हिंदुस्तान के आधी जनता को नहीं पता होगी। अभी बचपन में हमने पढ़ा था कि एक रेशम का कीड़ा होता है जो आसाम में मिलता है, लेकिन हम बड़े होके भूल चुके हैं कि हाँ ये सब होता है। अभी मैंने जो वीडियो बनाया, काफी लोग अभी कमेंट कर रहे हैं भाई आसाम में ये जो चीज थी ये तो हमें पता भी नहीं थी। Right. और जो मूगा सिल्क का प्रोसेस है, काफी सारे आसामीज लोग ने भी मुझे बोला ये हमें भी नहीं पता था। तो मैंने अपने व्लॉग में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन किया है। Right. और वो इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं कि मैं हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, ऐसी चीजें जो उस स्टेट का प्राइड है, लाइक वो उसी स्टेट में हो रहा है। तो जैसे अभी आसाम की चाय पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। राइट। मैं रशिया गया हुआ था, हम वहाँ पर मेन्यू में खाना ऑर्डर कर रहे हैं, और जब मैंने वहाँ बेवरेज वाले लाइन में देखा, वहाँ पर लिखा हुआ था आसामी टीज।
वाओ, ये मुझे भी आज पहली बार पता चला। वहाँ के मेन्यू में एक रेस्टोरेंट के हमने वो क्लिप भी है, हमने शूट भी किया था रशिया जाके। Okay. तो उसमें लिखा था आसाम टी, You सुपीरियर टी have लिखा that था। click, हाँ, right? So हाँ, we can show our audience. हाँ, we can show that, Yes, हाँ। okay, fine. আমি আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করি। ओके क्या दिख गया तुमको भाई? आसाम सुपीरियर। आसाम देखो ना आसाम लिखा है इधर, आसाम सुपीरियर चाहिए। अपना आसाम फेमस है भाई। करके याद आ रही है। आसाम की चाय रशिया में फेमस है, सही भी है कि मतलब ऐसी? पूछते ना लोगों को किधर की चाहिए क्या? अरे वो पूछेंगे सर दर्द है, मत पूछो मुझसे। Grilled vegetables, orange. Okay, brother, what is Assam tea? This is from India? No, 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 no. We don't want. I'm just asking you. Probably. No, you don't know? Okay, done. 4 items only. This one? That's all. Done. Then तो वो मेन्यू में हमने देखा और हमें पता चला कि आसाम की टी पूरी दुनिया में फेमस है। राइट, लेकिन हमको खुद ही नहीं पता। देखो मुझे भी नहीं पता क्या बोलूं मैं इसके बारे में, और क्योंकि हाँ, तो ऐसी काफी Yeah, सारी right. चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि वो लोगों तक पहुंचा रहा हूँ राइट, इन एंटरटेनमेंट वे। ऐसा भी नहीं कि एकदम टीचर की तरह आपको आके बोल रहा हूँ ये कर, ऐसे नहीं। मैं थोड़ा जो मैं हूँ अपने तरीके से मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है। ओके। अच्छी बात ये है। अब आप मुझे बताएं कि अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग, अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग, और कई सारी शौक शायद एमएसके की होगी जो शायद लोगों को नहीं पता, जो शायद लाइक ऑफ कैमरा आप करते होंगे लेकिन हम ऑन कैमरा जानना चाहते हैं। तो आप जब कभी तो ऐसा होता है कि आपको फ्री टाइम मिलता है खुद के लिए, कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा हाँ, शायद हाँ, दिन आता है, में, आता है, राइट? हाँ। उस टाइम पे आपको क्या थॉट्स आते हैं, क्या करने का मन करता है अपार्ट फ्रॉम व्लॉगिंग? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट कि आप ये आंसर मत देना मेरे को कि मुझे व्लॉग्स बनाना पसंद है, उसके बाद मैं सोचता रहता हूँ कि मैं क्या नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा। नहीं, मेरे को ये आंसर बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जिंदगी में मैं रुकता तब हूँ जब थोड़ा सा मैं थक जाता हूँ। थकावट दिमाग से होती है, मतलब ऐसा नहीं कि शरीर से। Right. जब थोड़ा सा नेगेटिव फील करता हूँ या थोड़ा मूड खराब होता है ना, तो मैं रेस्ट लेता हूँ। और वो जो टाइम होता है वो मी टाइम होता है। उस टाइम पे मैं मूवीज़ देखता हूँ, भर भर के जितनी भी मूवीज़ आई हैं सब देख लेता हूँ। और फिर मेरे को क्या है ना, शॉपिंग का थोड़ा शौक है। हाँ, वो तो दिख रहा है आपके तो- कितने शौकीन हुआ। मैं ना फिर शॉपिंग के लिए मॉल निकल जाता हूँ ओके, और एक बार में 1-1 लाख की शॉपिंग करके वापस आता हूँ। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है वो हाँ, खर्चा सुकून करना। मिलता है वो। हाँ, अच्छा लगता है, सुकून हाँ। मिलता है। एंड देन किसी ऐसी जगह में जहाँ पर बहुत शांत हो, वहाँ पर अकेले बैठना मुझे पसंद है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं अकेले में करता हूँ। और बुक्स पढ़ने का मेरे को थोड़ा शौक है अकेले में। ओके, तो जब कुछ ऐसा नहीं होता तो मैं बुक्स पढ़ के लोगों की ज़िंदगी जानने की कोशिश करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत बुक्स पढ़े हैं। मैंने अभी रिसेंटली मैंने इलॉन मस्क का पढ़ा था, वाह। तो काफ़ी इंस्पायर करता है ये सारी चीज़ें। तो फिर ये सब जो मी टाइम होता है उसमें मैं अपने आप को समझता हूँ, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। एंड देन फिर मोटिवेट होकर फिर वापस काम पे आ जाता आर यू अ फूडी? हूँ। यस, ऑफ कोर्स। फेवरेट डिश क्या है? मेरा चिकन बिरयानी है। चिकन बिरयानी। आई विश कि मैं चिकन बिरयानी यहाँ पे ले आ पाती, लेकिन हमारे साथ इनके साथ पूनम भी है। विल कॉल पूनम ऑल्सो, देन विल ट्राई एंड टेल हर कि यार इनके लिए चिकन बिरयानी ऑर्डर किया जाए कहीं से। एनीवे, जब आप मॉल जाते हो, कहीं भी जाते हो, घर से निकलते हो, तो बहुत सारे लोग लाइक यू आर अ वेरी नोन फेस, रिनाउंड फेस, तो लोग बहुत एकदम से भीड़ जमा हो जाता होगा शायद कि एमएस के भाई आए हैं या एमएस के आया है, फोटोज क्लिक करने हैं। उस टाइम पे जब एक टाइम पे था कि एमएसके को कोई नहीं जानता था, जो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, 15 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू किया, एंड देन यू हैव स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन यू लाइक आपने वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है खुद का वो आपने देखा है। तो जब आपको लोगों का प्यार ऐसे मिलता है सामने से, टू क्लिक अ पिक्चर विथ यू, दे यूज्ड टू वेट लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी भी हमारे शायद ऑफिस के बाहर बहुत सारे लोग होंगे, तो उस टाइम पे क्या ख्याल आता है? बहुत अच्छा लगता है। पहले पहले ऐसा लगता था कि वाह, यही तो लाइफ है, यही तो चाहिए था हमें। लेकिन अब कभी कभार ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज मेरे को लाइफ जीना पसंद है। ओके, अब अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और वहाँ पर जाके मैं मान लो कहीं पे भी, जैसे अभी रिसेंटली हम काजीरंगा में थे, वहाँ पर रुके थे, थोड़ा सा वीडियो शूट करना था, लोग आ गए, तो जो वीडियो शूट करना था वो हो नहीं पाया। अभी कहीं जाते सुसु करना होता है तो लोग कैमरा लेके खड़े होते हैं। अरे वो अब कहीं कैमरा लेके खड़े होते हैं कि थोड़ा डर लगता है।
यार अभी जैसे आपके साथ हम अपने दोस्तों के सामने ऐसा होता है ना कि कुछ भी बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शक्ल बेकार भी है तो ठीक है चलेगा, हाँ लेकिन चारों तरफ जब आपके पास लोग कैमरा लेके खड़े हों तो तब आपको कैसा लगेगा? Right. आपको लगेगा ना कि यार थोड़ी तो प्रिवेसी हमें मिलनी चाहिए, थोड़ा तो लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो वो जो दोस्तों के साथ मैं बाहर एंजॉय किया करता था और कुछ भी बातें, कुछ भी देखना या कुछ भी अजीब अजीब हरकतें, मजाक मस्ती, अब ऐसा है कि कोई देखने के लिए होता है, भरोसा नहीं कि There is कोई someone वीडियो who is बना looking at you all the time. कोई ऐसा है कि देख रहा है तो हमें कुछ भी करने से पहले देखना पड़ता है कोई है तो नहीं आसपास। वैसा होता है। Okay. और हाँ कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ और किसी ने मेरा वीडियो शूट कर लिया है और फिर वो मुझे कहीं से दिख जाता है, फिर मैं सोचता हूँ यार मैं यहाँ पर कब गया था। अरे तो ऐसे वीडियोस सब्सक्राइबर्स ने बनाए हैं जो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ था और याद भी नहीं है, लेकिन कोई था जो ऐसे देख रहा था। तो ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि जो तुम काम कर रहे हो ना, तुमने उसकी तो वजह से लोग प्यार देते हैं। तुमने यही तो मांगा था, अगर तुमको ये चाहिए तो फिर ये तो तुमको संभालना पड़ेगा। तो अभी मैं संभालने लगा हूँ ये सारी चीज़ को। अभी मुझे रियलाइज हो गया है कि तू नॉर्मल नहीं है, नाउ यू आर अ सेलिब्रिटी इन अ वे, मिनी सेलिब्रिटी या जो भी कह सकते हैं। नहीं, ऑफ कोर्स अ सेलिब्रिटी आल्सो। व्हाई मिनी क्यों लगा रहे हो सामने? क्योंकि हम यूट्यूबर्स हैं ना। अरे दैट डजंट मैटर, मीडियम डजंट मैटर, बट हाँ तो कभी कभार सही नहीं लगता है, लेकिन बाकी टाइम मैं एंजॉय करता हूँ। कोई भी मिलता है आ जाओ गले मिलो यार, मूड में रहता हूँ मैं। और right, गाने वाने right, बजा देते हैं right. साथ में। तो अभी हमने उसका मैंने वो ब्रेक डाउन कर लिया है कि अगर कभी ऐसा हो रहा है तो उसको भी दोस्त बना लो, आ जाओ तू भी चाय पी, तू भी मस्ती बढ़िया कर। है ये, दैट इज अ गुड क्वालिटी। और जब आपने बोला कि अगर आज से 4-5 साल पहले अगर मैं आपको बुलाती तो आप हिचकिचाते, यहाँ से भाग जाते, हाँ। तो अभी आपके चैनल में आप खुद ही एंकर होते हो, जैसे हाँ, अभी मैं हूँ, खुद के चैनल में खुद ही होते हो, हाँ। खुद को व्लॉग्स एंड करना पड़ता है, खुद को ही सब कुछ दिखाना पड़ता है। सो इफ आई गिव यू अ टास्क दैट वी रियली वांट टू टेक अ ब्रेक एंड नाउ यू हैव टू लाइक यू नो डू द शॉट, थ्रो इट। मतलब अच्छा ब्रेक लेने के लिए? हाँ, यस यू हैव टू। तो अनामिका जी के साथ देखो, तुमने जैसे बोला वैसे मेरा हो गया पंगा। So वैसे मैं एकदम सही से बोल रहा था, लेकिन जैसे आपने कहा तो इसे दिमाग में आ गया। ठीक है, नहीं, यू हैव टू बी द एंकर नाउ। तो मैं मोहम्मद सलीम खान, आपका एंकर आज का। अनामिका जी हमारे साथ में है, जिनके साथ हमने काफ़ी सारी बातें की, ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने थ्रो किए, कभी कभी मैं ब्लैंक हो गया। बट अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में हम आसाम की फेमस चाय पियेंगे और उसके बाद वापस आपसे मिलेंगे हमारी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहे, कहीं जाइएगा मत, इधर ही। ओके, थैंक यू। थैंक यू।